Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, a very bright and sunny good morning to everyone. I hope you all are fit and fine at your home. Yes? Yes. Okay. Yes, So, ma'am. today I'll be going to take test of yours. Okay? Jitna bhi kuch pada hai, let's do a summary. Let's do a recall, or we can say a test of that. देखते हैं आप लोग कितना सीखे हैं, कितना आता है आप लोगों को, क्या क्या भूल चुके हैं. Okay? So, are you all ready for that? क्या आप सब तैयार हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. So, शिवम गुप्ता, please mute yourself, बेटा. Mute करिए आप खुद को. शिवम गुप्ता. Then who is this? Ambuj Yadav. Ambuj Yadav, please mute yourself, Ambuj Yadav. Anuj Kushwaha. Okay. जब कहा जाएगा, जब कुछ पूछना होगा या बताना होगा, तब आप खुद को अनम्यूट करिएगा, क्योंकि आपके आसपास से काफी आवाजें आ रही हैं, जिसकी वजह से सब डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है? So let's begin with which chapter we will start? Tell me which chapter you want to revise. Which chapter? Ma'am, one. Ma'am, 6. Ma'am, one. Okay. One. One. What? How many times we have revised one? I think twice or. Ma'am, 8 chapter. First. Okay. Okay. According to my choice, I'm going to ask few questions. Okay. Not first, second, third. Let's talk about metal. Have you heard this term? What is metal? Yes, ma'am. Okay. Who will give the answer? What is metal? Who will give the answer? Ma'am, Yes, give. ma'am, Ma'am, dhatu. dhatu. Ma'am, Hindi, dhatu. I'm not asking dhatu and Ma'am, upadhatu. definition. Okay, what Ma'am, is the definition of this metal? How will you say that this particular substance is metal? Ma'am, मैं बताऊं? Yes. Ma'am, hard substance. Hard, lustrous, good conductor of heat, Okay, electricity. wait. This duster is very hard. Okay, is it a metal? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Now, this bangle. Ma'am, your Is it a metal headphone. now? This, is it a metal? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Is it Yes, visible? ma'am. दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes. Yes, So ma'am. Yes, metal are generally hard. Hard. Ma'am, your headphone. Then after hard, they are shiny. What is another name of shine? What is another name? Ma'am, bright. Luctor. Lusher. Yes, very very good. Superb. Lusher. Very good. Lusher means क्या होता है? Not bright but shiny. So metals are shiny in nature. Right now I've shown that this bangle, this particular bangle which is there in my hand is metal. How? It is shiny in nature, it is hard, and the most important thing is it is a good conductor of what? Good conductor of what? Heat and heat. Electricity. Okay. Heat and electricity. And electricity. Now, can anyone tell me what is the meaning of good conductor of heat and electricity? इसका heat और electricity से क्या लेना देना है? Ma'am, heat or electricity. Yes. Ma'am, बिजली आती है. करंट फ्लो करने में. Yes. It allow, ये क्या करता है? अपने से होके करंट को फ्लो करने देता है. Like this wire which I have holded in my hand, ये वायर के ऊपर तो प्लास्टिक का कोटिंग लगा है ताकि आपको डायरेक्ट करंट ना लगे, झटके शॉक्स ना लगे, इस वजह से प्लास्टिक की कोटिंग कर दी गई. लेकिन इसके अंदर जो वायर होगा, that wire is a metal. उसके अंदर पतला सा, जब आप इसको ऐसे निकालेंगे अंदर वाले वायर को, ओके, तो उसमें क्या होगा? मेटल. कॉपर का होगा. It can be of copper, it can be of aluminium wire, it can be of gold wire, silver wire.
कुछ भी हो सकता है, ठीक है? भी होगा यस, एल्युमिनियम का भी मैम। हो मैम सकता है, कॉपर का भी हो सकता आयरन है। होगा। आयरन का वायर नहीं आता बेटा, कॉपर और एल्युमिनियम। होता है। कॉपर जनरली लेते हैं बिकॉज कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर क्या कर सकता है? ट्रांसफर करता है। मतलब अगर ये वायर है दो, ऐसे मैंने पकड़ा हुआ है, तो ये यहाँ से अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो इसको पूरे वायर में यहाँ तक ले आने का मतलब ये अगर साउंड है, अगर ये कनेक्टेड है, दिस हेडफोन इज कनेक्टेड थ्रू वायर, तो ये साउंड आप तक कैसे पहुंच रहा है? विद द हेल्प ऑफ दिस वायर। वायर की वजह से, क्यों? बिकॉज वायर इज मेड अप ऑफ व्हाट? मेटल। ये अलग बात है कि इसके ऊपर किस चीज की कोटिंग करी गई है, किस चीज की कोटिंग की गई है? प्लास्टिक। वाई प्लास्टिक? वाई प्लास्टिक? वाई प्लास्टिक? कल ताकि हम लोग करंट ना लगे। यस, बिकॉज करंट ना द लगे इसलिए। एग्जैक्ट आंसर इज बिकॉज प्लास्टिक क्या होता है? इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का मतलब जानते हैं? टू जो प्रोटेक्ट बैड कंडक्टर होता है। यस, वेरी गुड। जैसे यू ऑल हैव सीन प्रेशर कुकर का हैंडल देखा होगा अपने घरों में, यस तो मैम। हैंडल ऑफ द यस प्रेशर मैम। कुकर वो गर्म नहीं होता, लेकिन बाकी सारा प्रेशर कुकर इफ यू कीप इट ऑन द फ्लेम, गैस पे रखेंगे तो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। सिमिलरली दिस ऑल्सो, आप ये वायर 10 घंटे भी कनेक्ट करके रखेंगे तो ये वायर गर्म नहीं होगा। वाई? बिकॉज इस वायर पे किसकी कोटिंग की गई है? प्लास्टिक, एंड प्लास्टिक इज insulator. Yeah, is it clear? Insulator. Yes. Okay. यस मैम। Metals are, here I have written hard. Lustre means shine, good conductor of heat and electricity, and when very important, one very important term, that is sonorous. What is the meaning of sonorous? Have you seen bell of our school? Bell. यस मैम। Okay, the manual bell जो हम लगाते हैं टन टन करके. Electronic bell I'm not talking. I'm talking about the manual bell. Manual bell मतलब क्या है? एक आयरन का शीट होता है गोल सा, और उस पे with a hammer we used to what? We used to beat here with a hammer, with the help of hammer. और क्या होता है? Ringing sound produce होता है, and that ringing sonorous sound is being produced by the help of that hammer when that hammer is beaten where on this iron sheet. So that sound is what called sonorous sound. उस sound को क्या बोलते हैं? sonorous sound, जो metal में ही produce होता है। आप डस्टर को लेके पीटते ही रह जाएंगे किसी चीज पे, वो sonorous sound produce नहीं करेगा, ठीक है? Okay, so this is about metal. Any other metal? इसके अलावा कोई और metal है? गोल्ड भी एक क्या है? मेटल है। सिल्वर भी क्या है? मेटल है। सिल्वर। यस, जो शाइन करता है जनरली वो मेटल्स होते हैं। ब्रॉन्ज? ब्रॉन्ज इज एन एलॉय। एलॉय है वो, आगे जाके पढ़ेंगे मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है एलॉय क्या होता है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट थिंग I hope you all have learned and you all will give answer. What is the meaning of opaque? Okay, opaque. What is opaque? मैम When we will say a substance is opaque, which you are saying as opaque, opaque आप बोलते हैं opaque, but मैम this is जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। okay. One is not able to see. मैम ट्रांसपेरेंट। No, transparent means what? We can see everything. मैम जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। Yes. Cannot see. See, ऐसे ऑब्जेक्ट चैप्टर, आई एम नॉट आस्किंग, मेरे पास कोई भी अगर टॉपिक आएगा तो मैं पूछ लूंगी, बिकॉज वी हैव फिनिश्ड 8 चैप्टर्स एंड आई होप यू ऑल हैव स्टडीड. तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, सो बी रेडी. आई एम ओनली चेकिंग हाउ मच यू ऑल आर स्टडिंग, हाउ मच यू ऑल आर पेइंग अटेंशन इन क्लास. कितना पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है, और कौन कौन जवाब दे रहा है. इट्स एवरीथिंग इज विजिबल हियर. Shivam Gupta is giving answer, Ambuj Yadav is giving answer, and few girls are here which are giving answer. So only 3 or 4 students are giving answer. It means rest of them are not paying attention. बाकी सारे क्या कर रहे हैं फिर? Okay? तो पढ़ना शुरू कर दीजिए. बहुत पहले से मैं कह रही हूँ पढ़िए पढ़िए. जो भी नहीं समझ में आता है, bring it here, ask from me, I'll sort out your problem. लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या हैं? Sorry. Opaque. Now,
What is the meaning of opaque? A substance through which we cannot see anything is what called opaque. ऐसा solid कोई substance हो जिसके आर पार हम कुछ नहीं देख सकते. Like this right now, this blackboard is there. Here, क्या हम blackboard के उस तरफ देख सकते हैं? नहीं देख सकते. ये क्या है? Opaque substance. You are living in a house which is surrounded by walls. वो चारों तरफ किस चीज से ढका हुआ रहता है? वॉल से. वॉल क्या है? वॉल क्यों होता है? क्योंकि आप बगल में क्या हो रहा है, आप वो ना देखे और आपको कोई ना देखे. ठीक है? So that wall is what? Opaque. My hand here. If I'm keeping my hand in front of my this eyes, I'm not able to see what is going on behind this hand. इस हाथ के आगे क्या हो रहा है मैं नहीं देख सकती. तो कोई भी solid substance जिससे आप आर पार कुछ भी ना देख पाए, that is what called opaque. Call it as opaque, opaque. This is opaque, opaque, and simply opaque. Okay, is it clear? Opaque. Yes, ma'am. Shreya Gupta, clear? Yes, ma'am. Okay, moving ahead. The next term which is here is transparent. Okay. What is the meaning of transparent? Throw it. Yes. जिससे आप clearly चीजों को क्या देख सकते हैं? आर पार देख सकते हैं. Okay, that is what transparent. Those who are wearing specs, जो चश्मा पहनते हैं, उनको क्या होता है? Yes, sunglasses. मैम आर पर अच्छे से देख सकते हैं क्लियरली. Yes. Yes. ग्लास भी है तो वो भी ग्लास के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. ठीक है? क्या आप कांच का ग्लास लें तो उसमें विजिबल होता है कि आपने अंदर रखा क्या है? तो दैट इज व्हाट ट्रांसपेरेंट. तो ऐसे सब्सटेंस जिनसे आर पार चीजों को आप देख सकते हैं इजीली. यू कैन व्यू द थिंग्स. That is what called transparent. Now coming on to the third one related to this is translucent. Now the person from whom I will ask, they will only give the answer. Translucent. Okay. Abhigyan. Shreya Gupta, can you tell me what is the meaning of translucent, Shreya? Tell me what is the meaning of translucent. Yes. मैम materials can be seen but not clear. I'm asking right now from Shreya. Let her give the answer. Ma'am, materials through which objects can be seen but not clear. Okay. Yes. Translucent मतलब इन दोनों के बीच का स्टेज है. दिख भी रहा है और नहीं भी दिख रहा है. तो can you give any example related to translucent material? Butter paper. A paper. ऐसा पेपर जो क्या हो, ऑयल लगा हो या घी लगा हो या रिफाइन लगा हो, जो भी आप लगा दीजिए. ओके, फैटी कोई सब्सटेंस लगा दीजिए तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? ट्रांसल्यूसेंट की तरह बिहेव करेगा. ओके, नाउ योर हैंड, इफ यू विल पुट व्हाट? टॉर्च. और टॉर्च कर देंगे, अ ग्लोइंग टॉर्च, जलता हुआ टॉर्च अगर रखेंगे ऑन करके तो आपका हाथ उस टाइम कैसा दिखाई देगा? रेड कलर का. रेड. ऐसे अगर आप विदाउट टॉर्च देखेंगे, सी नो रेड कलर इज विजिबल हियर, तो आप कहेंगे कि भाई अभी तो लाल दिख रहा था, अभी क्या दिख रहा है? लाल नहीं दिख रहा है. तो दिख भी रहा है और नहीं भी दिख रहा है. जहाँ कंडीशन होता है वहां पे एक टर्म यूज करते हैं, पार्शियल. ओके, पार्शियल. दिखता भी है और नहीं भी दिखता है. तो ट्रांसल्यूसेंट वो सब्सटेंस है through which we can see the things partially. ओके, जिससे हम देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं. Is it clear? नहीं भी देख सकते हैं. Yes. Yes, ma'am. Okay. Moving to the next question. Wait. What is the difference between sedimentation and decantation? Okay, it's very simple. Who is going to give the answer? Sedimentation and decantation. Let me see. I'm writing the names here. Those who are giving the answer, I'll give them +5 from my end. Okay.
Question is, wait, let me write the question first, and then you all start giving the answer, okay? Sedimentation and decantation. Don't cheat it from book. मैम सेडिमेंटेशन मतलब नीचे बैठ जाना। कौन नीचे बैठ गया? आप अगर नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, अगर आप नीचे बैठ के पढ़ रहे होंगे इस टाइम, तो क्या आप सेडिमेंटेशन है? मैम इम्प्योरिटी तो पानी अंदर अगर आप कोई देखिए सोल्यूशन लेते हैं, पानी में सैंड, लिसन नाउ, पानी में सैंड, पानी में सैंड। see 2 3 students are giving answer to it. जो पानी के अंदर नीचे जाकर बैठ जाता है। जी जी जी। पानी का तो सैंड Okay, Shivesh has given answer. पानी Then Nitish has given answer. Kriti, now stop. Let me explain it. पानी के नीचे अब आप शांत रहिए और मुझे बोलने दीजिए, ठीक है? जिन्होंने आंसर दिया है सही है। शिवेश, your answer is also correct, and rest of them, who has given answer? भाई अभिज्ञान is there, Ambuj Yadav. Okay, so many have given the answer. So let's see what is sedimentation. अगर आप कोई impure heterogeneous कुछ mixture लेते हैं, what is the meaning of first heterogeneous mixture? तो mixture solution दो तरीके के होते हैं बेटा। solution, चलिए ठीक है, solution are of two kind, homogeneous or heterogeneous. Okay, so let me write it first, then I'll explain sedimentation and decantation. Don't sing a song please. Solution दो तरीके के हैं, homogeneous, the second one is heterogeneous. Okay, कितने तरीके के solution हैं? Yes. First one is homogeneous. Speak along with me. Homogeneous. It's homogeneous. Everyone. Homogeneous. Homogeneous. Heterogeneous. Heterogeneous. Okay. Now homogeneous क्या होता है? जैसे कि आप लेते हैं चीनी पानी का घोल बनाते हैं. Okay. Solution if you are making with sugar water or you are taking as salt water. Okay. तो solution बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? We need two things, and that two things are what? One solute, and the second one is solvent. Yes, very good. So we need a solute, and the second we need is solvent. Okay. So if we are making water and sugar solution, then sugar क्या होगा? Solvent होगा कि solute होगा? मैम सॉल्यूट होगा। Yes. Solute क्या होगा? Sugar. Yes. And water क्या होगा? Water solvent. Generally हम water को ही solvent लेते हैं. Solvent क्या होता है? जो अपने में किसी चीज को घुला लेता है उसको क्या बोलते हैं हम? सॉल्वेंट बोलते हैं. जो अपने अंदर किसी चीज को डिसॉल्व कर ले, घुला ले, दैट इज व्हाट कॉल सॉल्वेंट. तो पानी में अगर आप नींबू डालते हैं वो भी घुल जाता है, नमक डालते हैं वो भी घुल जाता है, चीनी डालते हैं वो भी घुल जाता है, ग्लूकोज आप डालते हैं वो भी घुल जाता है. ठीक है, पानी में दूध डाल दे वो भी क्या हो जाता है? अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा. तो वाटर इज व्हाट? सॉल्वेंट. एंड सल्यूट क्या होता है? सल्यूट शुगर. ठीक है, शुगर यहाँ पे क्या है? सल्यूट. दोनों मिलके क्या बनाएंगे? सोल्यूशन बनाएंगे. लिसन केयरफुली प्लीज. अब यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो चीनी पानी का है. तो अगर आप ग्लास में ऊपर से एक चम्मच निकाल के और टेस्ट करें तो वो कैसा देगा? शुगर वाटर का सोल्यूशन कैसा टेस्ट देगा? स्वीट ही टेस्ट देगा, मीठा. अगर आप यहाँ से वो पानी निकालेंगे तो भी मीठा ही टेस्ट देगा, यहाँ से निकालेंगे पानी तो भी मतलब ये पूरा ग्लास में कैसा टेस्ट रहेगा? स्वीट टेस्ट रहेगा, यूनिफॉर्म, पूरे एक तरीके से पूरा ये ग्लास कैसा रहेगा? मीठे पानी की तरह रहेगा. ठीक है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड होमोजीनस. होमो मतलब एक जैसा, पूरा सोल्यूशन एक जैसा रहे. और आप उस डिसॉल्व करने के बाद आप पहचान नहीं पाएंगे कि which is where is water and which one is sugar particle and which one is water. क्योंकि शुगर भी क्या हो जाता है? अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है. डिसॉल्व होने के बाद आप शुगर उसमें से निकाल नहीं सकते. ओके, तो ऐसे सोल्यूशन
ऐसे सोल्यूशन जिसमें से आप सोल्यूट को निकाल नहीं सकते आफ्टर गेटिंग मिक्सिंग, दैट इज व्हाट कॉल्ड होमोजीनियस। जनरली आप नहीं निकाल सकते, गर्म करना और ठंडे करने के बाद तो निकाला जा सकता है, बट ऐसे अगर कह दे कि ऑन द स्पॉट तुरंत निकाल के दिखाइए, चीनी तुरंत निकालिए, तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू। ओके, होमोजीनियस सोल्यूशन मतलब एक ही जैसा स्टेट हो पूरे इस बीकर में, ग्लास में, जहां पे भी आप ले रहे हैं, तो दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन इज व्हाट कॉल्ड होमोजीनियस। Talking about heterogeneous, so let's take the example of sand and water. Okay, क्या ले रहे हैं हम? Sand and second water. ठीक है, sand and water. तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? Sand क्या होता है? हेवी होता है वाटर से, तो वो क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा। और वाटर क्या होगा? ये आपको ऊपर अलग दिखाई देगा, यहाँ पे वाटर फ्लोट करता रहेगा ऊपर, और सैंड ये क्या रहेगा? सेटल हो जाएगा। क्या आप इस सोल्यूशन को बॉटम में सेटल लिसन, क्या आप इस सोल्यूशन को अलग कर सकते हैं? यस मैम। कैन यू सेपरेट? यस। क्या आप इस सोल्यूशन को अलग कर सकते हैं? इस सोल्यूशन को? नो मैम, शुगर वाटर, नो, इसको नहीं कर सकते, बट इसको कर सकते हैं, इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन जिसमें हम जनरली सेपरेट ना कर सके सोल्यूट पार्टिकल को, और जो एक ही जैसा, आप जहां भी देखेंगे स्वीट ही टेस्ट देगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप सैंड ढूंढेंगे ऊपर, तो सैंड के पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल इन द अपर पार्ट, दे विल गेट सेटल डाउन। अगर आप नीचे के पोर्शन में वाटर ढूंढेंगे, तो वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, कौन प्रेजेंट होगा? सैंड। तो ये पूरा कॉम्पोजिशन क्या है? अनइवन, एक जैसा नहीं है। कहीं आपको पानी दिखाई देगा और कहीं आपको सैंड दिखाई देगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये अनइवन कॉम्पोजिशन है, और ये पूरा इवन, इवन मतलब एक जैसा, ठीक है, और अनइवन मतलब कि एक जैसा ना हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से कोई कहे कि निकालिए उस सोल्यूशन को, तो आप सिर्फ पानी ही निकाल पाएंगे, सैंड तो नीचे बैठ गया है, ठीक है। तो ये हेट्रोजीनियस होता है, और ये कैसा सोल्यूशन है? होमोजीनियस सोल्यूशन। इज इट क्लियर? यस मैम। Is this Kriti, Lakshita is here? Okay. तो ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, आई होप क्लियर। अब बात करते हैं हम किसकी? डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन। तो क्या आप होमोजीनियस में सेडिमेंटेशन करा सकते हैं? नो मैम। नो, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या है? कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। इसके पार्टिकल पूरी तरह से क्या? हाँ, इवन होते हैं, पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व है। तो आप किसका सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन करेंगे? हेट्रोजीनियस काइंड ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ही आप क्या कर सकते हैं? सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन नाउ। अब हम आते हैं सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन पे। दोज हु आर डिस्टर्बिंग, प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, कोऑपरेट इन द क्लास. It's my humble request to cooperate in the class. Let everyone to study, please. थोड़ी शांति बनाइए। नेक्स्ट सोल्यूशन में आते हैं। अब सोल्यूशन तो देख लिया, डिकेंटेशन पे आते हैं। उससे पहले हम सेडिमेंटेशन करेंगे, तब जाके डिकेंटेशन होगा। One term was there as supernatant liquid. आया था कहीं supernatant liquid? इस चैप्टर में कहीं आया था supernatant liquid? आया है कहीं? अच्छा चलिए, हमने लिया है mud water solution। क्या लिया यहाँ पे? mud water, okay? तो क्या होगा? We have taken mud water solution in a beaker and we have left it for 2 to 3 hours. हम उसको क्या नहीं करेंगे? शेक नहीं करेंगे, हिलाएंगे नहीं, as it is we'll keep for few hours like this. क्या होगा? कुछ समय के बाद mud will settle down. हाँ, मड वाटर क्या होता है? mud water नहीं जानते? मिट्टी जानते हैं? मैम, जिसमें कीचड़ मिला हो।
नहीं जानते तो मत लिखिए। मड मतलब कीचड़ वाला पानी को मड वाटर सोल्यूशन बोलते हैं। कीचड़ देखा है? यस मैम, वो रेन के बाद हो जाता है मैम। जी जी बिल्कुल। अगर आप बाहर निकले होंगे तो कीचड़ तो कभी ना कभी लगा ही होगा आपके शूज में, पैंट में। देखा है? किसने पूछा था मड वाटर सोल्यूशन? वेयर इज दैट बॉय हु इज आस्क्ड मड वाटर? इज इट क्लियर? पहले मड वाटर ना लेके आप सैंड वाटर ले लीजिए, या आप ग्रेवल वाटर ले लीजिए। ग्रेवल मीन्स व्हाट? छोटे छोटे कंकड़ को बोलते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स को बोलते हैं ग्रेवल। तो अगर आप ग्रेवल सैंड वाटर लेते हैं तो ग्रेवल और सैंड विल सेटल डाउन एंड वाटर विल फ्लोट ऑन इट। वाटर हल्का होता है तो ऊपर फ्लोट करता हुआ रहेगा, and sand and gravel will what? Settle down at the bottom. Okay? नीचे क्या होगा? Settle down हो जाएगा। Yes. मैम जब बारिश होती है तो मैम मिट्टी क्यों मैम फूल जाता है? क्योंकि मिट्टी के अंदर पानी चला जाता है, और जिस चीज के अंदर पानी जाएगा उसका साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसलिए मिट्टी क्या हो जाता है? फूल जाता है। ठीक है? आप भी अगर बहुत ज्यादा खा लेंगे बेटा तो क्या होगा? आप भी क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे। और उस फूले हुए स्टेज को वी यूज्ड टू से एट फैटी पर्सन। ओबेसिटी हो गया, फैटी हो गए, मोटे हो गए। ठीक है? तो भाई मिट्टी को भी मोटे होने का हक है ना। तो मिट्टी के अंदर जब कुछ जाएगा, पानी जाएगा, तो उसका भी साइज बड़ा हो जाएगा। ओके, तो लेट्स कम टू अ पॉइंट। व्हाट वी वर स्टडीइंग इज सेडिमेंटेशन। तो जैसे हम ग्रेवल सैंड वाटर लेते हैं तो ग्रेवल और सैंड सेटल डाउन हो जाएगा नीचे, और वाटर विल फ्लोट। वाटर क्या रहेगा? ऊपर रहेगा, और ग्रेवल और सैंड क्या होता है मैम? ग्रेवल क्या होता है? ग्रेवल मीन्स छोटे छोटे कंकड़ को बोलते हैं। ठीक है? छोटी छोटी गिट्टी, कंकड़। किस भाषा में समझा? पेबल्स, छोटे छोटे स्टोन्स को बोलते हैं क्या? ग्रेवल। समझ में आया? यस मैम। ग्रेवल समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। Small things you don't know, gravel you don't know, mud आप नहीं जानते. What you have read in class 5th? मड हम जानते हैं, ग्रेवल नहीं। Okay. Gravel, sand and water यहाँ लिया। अब इसको सेटल करने के लिए छोड़ दिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंटेशन बोलेंगे। Settling of the solid particle in a solution after keeping it for few hours, that is what called sedimentation. Settle होने के लिए छोड़ दिया भाई, ऐसे रहने देते हैं, जो solid होगा वो settle हो जाएगा। What is decantation? Decantation देखिए, the liquid which is pure here, which is clean, is poured in. क्या करते हैं उसको? एक बीकर लेंगे और उसमें से सारा पोर कर देंगे। पोर करने का मतलब उड़ेल देना, ऐसे करके डाल देना। ठीक है? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन। जिसकी वजह से जो सॉलिड सेटल पार्टिकल है यहाँ पे, इम्प्योरिटीज वो सेटल रहेंगी, और जो प्योर चीज है वो हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। ठीक है? अब नाउ लिसन इट केयरफुली। हु इज डिस्टर्बिंग हियर? अभिज्ञान, कैन यू प्लीज शट योर माउथ नाउ? अब इस सेडिमेंटेशन प्रोसेस में जो लिक्विड यहाँ पे है उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड। ये ध्यान रखिएगा, दिया हुआ एनसीईआरटी में। सुपर क्या बोलते हैं? सुपरनेटेंट लिक्विड। क्या बोलते हैं? सुपरनेटेंट लिक्विड। इज इट क्लियर? यस मैम। और यही लिक्विड क्या होता है? प्योर होता है। बाकी सारे क्या? इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो गई। ठीक है? तो जब हम, ध्यान रखिएगा, जब हम एक हेट्रोजीनियस सोल्यूशन लेते हैं, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर लेते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं? सेडिमेंटेशन कर सकते हैं और डिकेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है? होमोजीनियस में सेडिमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। आप लेके 4 दिन तक ऐसे ही बैठे रह जाएंगे होमोजीनियस सोल्यूशन, और शायद ही कोई क्या हो, चीनी आके नीचे बैठ जाए, तो बैठे बैठे क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे। तो थकने से अच्छा which kind of solution you have to take? Heterogeneous. Is it clear, girls? यस मैम। जो चीनी घुल जाएगा उसको क्या कहेंगे? उसको तो सोल्यूशन ही कहेंगे, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना है, तो वो पूरा सोल्यूशन बन गया। जो घुलता नहीं है, जो अलग अलग डिवाइड हो जाता है, ऊपर वाले को कहते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड, और नीचे वाले को कहते हैं क्या?
क्या बोलेंगे? रेजिड्यू, ठीक है, कचड़ा जो बैठ गया उसको रेजिड्यू बोलते हैं। मैम उसकी स्पेलिंग क्या होती है? RESIDUE। आपको यही पढ़ना है, सुपरनेटेंट लिक्विड पढ़ना था। तो इज इट क्लियर नाउ? सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन? यस मैम। Energy level is very low today. What happened? You all have not done breakfast? यस मैम। What? नो मैम मैंने नहीं किया। Oh, that's why your voice is not coming. यस मैम। Okay. The last question for today. Okay. Iodine. Have you heard iodine? Iodine? Iodine के बारे में सुना है? यस मैम। Okay. Can anyone give the symbol of iodine? Symbol क्या होता है iodine का? मैम क्या? Symbol of iodine. Iodine एक element है. Yes. Very good. Capital I is the symbol. अब देखिए iodine से related क्या है? What is related with iodine? What we have to study? Iodine कहाँ मिलता है? Salt खाते हैं आप? Yes. वो salt का जब ऐड देखते होंगे तो लिखा होगा भाई iodized salt, iodized salt. तो ऐसा नमक जिसमें क्या मिक्स हो, आयोडीन मिक्स हो, ये वाला सॉल्ट आप खाते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है? लैक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू गोइटर। यस। सिम्टम क्या होता है गोइटर डिजीज का? What is the symptom of goiter disease? फूल जाता है। By you all are studying in English medium. Neck फूल जाता है, neck फूल जाता है, neck फूल जाता है. What is this? Swelling of neck. Can't you speak English? Few words. I'm using few words in English. फूल जाता है, फूल जाता है. What is this? Swelling of neck. Swelling. यहाँ पे क्या होगा? ये swelling हो जाएगा. ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कौन सा gland होता है? Thyroid gland. Swelling of that particular area. ये swelling आ जाती है. ठीक है? तो iodine. Yes. Mentally, हाँ. Mentally हो जाएंगे. इसलिए iron, lack of iron leads to deficiency of iron causes which disease? Anemia. No, ma'am. Anemia. Yes. Who is saying night blindness? Anemia. Anemia मतलब क्या होता है? What is the meaning of anemia? What is the literal meaning of anemia? Blood की कमी हो जाना. ठीक है? ब्लड कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा. ठीक है? तो ऑल टुगेदर व्हाट क्या डिक्रीज करता है एनीमिया में? ब्लड लेवल जो है आपका वो कम हो जाएगा, मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा. ठीक है? और हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन का लेवल भी आपके बॉडी में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी को नहीं मिल पाएगा तो आप कैसा फील करेंगे? कमजोर जैसा फील करेंगे. जैसा लग रहा है अभी ही सब फील कर रहे हैं. ऑल आर टायर्ड, सम ऑफ देम आर स्लीपिंग. कुछ तो लग रहा है जैसे जल्दी से क्लास खत्म हो, मैं सोऊं ऐसे. ओके, सो एनीमिया इज अ डिजीज, ब्लड कॉजिंग डिजीज. ब्लड की कमी हो जाना, तो दैट इज रिलेटेड विद ब्लड. नाउ विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज होती है? लैक ऑफ विटामिन ए, Night blindness. नाइट ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ दिखाई कम देने लगता है एट नाइट. ओके, बोन्स आर फॉर्म्ड ऑफ व्हिच काइंड ऑफ मिनरल? बोन, आपका बोन किस मिनरल से मिलके बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट. वेरी गुड, वेरी गुड. हु इज गिवन द आंसर? मैम मी. अक्षिता, नो, श्रेया गुप्ता, हिमांशी. Okay, so those have given the answers. Very good. Our bone is mainly formed of calcium. Okay, और ये अलग बात है, कैल्शियम कार्बोनेट से होता है. कैल्शियम से मिलके बना होता है, फास्फोरस से मिलके बना होता है. Yes, teeth. The hardest part of the body. Can anyone tell me the hardest part of the body? Enamel. Where is the enamel? Which part? Which part it is present? Outer covering of teeth. Yes, very very good. इतना पढ़ लेंगे तो आप तो साइंस में टॉप कर जाएंगे.
Very good. Those who are studying, I'm very happy. Okay. Rickets is which kind of disease? Rickets. Ma'am, rickets. Bones become soft, ma'am. Bones become soft. बोन्स क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं. लाइक आवर बोन्स इज वेरी हार्ड. बताया था कि बोन क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं. तो बोन्स इस डिजीज में क्या हो जाता है? बहुत वीक हो जाते हैं. ठीक है? Yes, ma'am. और weak हो जाते हैं. Lackness of vitamin D. Lackness of vitamin D. जी जी बिल्कुल. Okay. Last question. Hardly 1 minute there. Okay. Last question. Tell me any food item which is called a complete food. ऐसा कोई food item जो कि complete food कहा जाता हो. Any food item which is called as a complete food. Yes. Papaya. Milk. Milk. Yes. Milk. Yes. Very good. That's why your mother used to say, भाई दूध पी के जाओ, दूध पियो. ठीक है. Milk is called as a complete food. इसमें सब कुछ पाया जाता है जो भी nutrients होते हैं. How many nutrients are there altogether? 7. Yes. Very good. Very good. 7. What is fiber? What is fiber? Ma'am, Hindi meaning. Ma'am. Made up of. Okay, it is related to the chapter. क्लोथ्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था आपको.